Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, dear students. As you know that we are discussing about the emotions, and today we are going to discuss about the importance of training of emotions. As you know that we have discussed three main types of emotions, that are anger, fear, and jealousy. These three types of emotions are basically negative emotions. And if these are negative, then what is positive emotion? Positive emotion means joy, happiness. These kinds of emotions are positive emotions. Now, dear students, today we are going to discuss about the training, importance of training for emotions. The training of emotion is very important because training of emotions motivates an individual for healthy and useful activities. एक बच्चे की जो जज्बात है उनको सही तरीके से, सही ढंग से इस्तेमाल कराना एक उस्ताद का फ़र्ज है. तो उन इमोशंस के बारे में बच्चों को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चा जो है उसकी जो इमोशंस है वो इमोशंस एक हेल्दी एंड यूजफुल एक्टिविटीज की तरफ इस्तेमाल की जाए. नंबर 2, ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस helps in developing sound physical health. Dear students, training of emotions are also important in the physical development of the child. Constant emotions, tensions may cause nervousness, headache, fatigue, lack of appetite, and loss of sleep. आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं कि कोई बच्चा ऐसा होता है हमारे पास जो बहुत शरारती होता है, जो बहुत नॉटी होता है, बहुत जिद्दी होता है. उसकी जो फिजिक होती है वो बहुत पतला होता है. उसकी फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो जैसे मानो कि हम कहते हैं उसको ये बच्चा बहुत कमज़ोर है, लेकिन उसमें इमोशंस जो है, उसकी फिजिकल हालत जो है, उसकी इमोशंस का उन पे बहुत बुरा असर है. तो अगर हमारे पास हम में ज़्यादा इमोशंस हैं, तो टेंशन है, इस इमोशनल टेंशन की वजह से हमारी नर्व्स जो है डैमेज हो सकती हैं, हमारे सिर में दर्द कर सकता है, थकावट हम महसूस करेंगे, भूख न लगना, और हम अपनी नींद भी खो सकते हैं. तो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ इमोशंस. तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस बहुत ज़रूरी है, ताकि इंसान सही तरीके से अपने जज्बात पर कंट्रोल करके उनको सही ढंग से इस्तेमाल कर सकता है. नंबर 3, ट्रेनिंग और कंट्रोलिंग ऑफ इमोशंस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सेंटिमेंट्स एंड हेल्दी कैरेक्टर. जब हमारे पास जब हम अपनी इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं, जब हम अपने इमोशंस को काबू में रख सकते हैं, इट मीन्स दैट वी माइट हैव healthy sentiments and healthy character. It means that character development is the main aim of training of emotions. So it means that
अगर हम ओवरऑल बात करें तो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट होती है, इसमें सोशल डेवलपमेंट होती है। देखो, अगर आप में इमोशन ऑफ एंगर है तो सोसाइटी के लोग जो है आपसे दूर भागेंगे, क्योंकि सोसाइटी में उसी के वही इंसान कामयाब है जिसका बोल चाल, जिसके बात करने का सलीका जो है वो ठीक है, जिसमें बर्दाश्त होती है, तो वही समाज में एक अच्छा इंसान कहलाता है। तो इट मीन्स दैट social development is another aspect that can be developed through the training of emotions. It means that all aspects of life are covered under the when we give training for emotions. It means that an emotionally matured individual can achieve all-round development. Now, to win friends and social appreciations, one should have control over his emotions. अगर आप चाहते हैं कि आपके भी अच्छे अच्छे दोस्त हों, आपका भी जो है आपको भी समाज से अप्रिसिएशन मिले, तो यू शुड हैव कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। तो आपको अपनी इमोशंस पर जो है काबू करना है। नंबर 5, ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस विल हेल्प इन डेवलपिंग गुड मेंटल हेल्थ एंड free from maladjustment, conflicts and complexities. जो training of emotions is also helpful in developing good mental health. It means that for mental development, training of emotions is very much important. It means that if you have control over your emotions, it means that there may be possibility of mental development in that particular individual who is having control over his emotions. So in other words, we can say that emotions जो हैं, feelings जो हैं, वही सारे फसाद की जो है जड़ होते हैं। देखो, अगर हमारे इमोशंस पे हमें कंट्रोल है तो हम कहीं भी जाके कामयाब हो सकते हैं और हमें अच्छी तरह से रेस्पेक्ट मिल सकता है समाज से। लेकिन अगर हमारी इमोशंस में ज़रा सी भी प्रॉब्लम है, हम में एंगर आ गया, हम में फियर आ गया, हम में जेलसी आ गई, तो लोग हमसे दूर भागेंगे, तो जिसकी वजह से हम समाज से बहुत दूर जाके हमारी जो है नाकामयाबी ही हमें हासिल होगी। अगर एक इंसान को अपने समाज में रहना है, अपने दोस्तों से जुड़े रहना है, अपने फ्रेंड्स से मतलब प्यार हासिल करना है, तो इट मीन्स दैट यू शुड हैव कंट्रोल ओवर योर इमोशंस एंड you should use your emotions in the proper direction for positive works. So these are the importance of training of emotions. Thank you very much.